myself Lakshmi Maheshwari from Bhagwanti Saraswati Vidya Mandir, Inter College, New Mandi, Muzaffarnagar. Today we are going to study about the poem The Psalm of Life for class 10th. The poem Psalm of Life. Psalm means religious song, यानी धार्मिक गीत, जिसको हम भजन भी बोल सकते हैं, जीवन का गीत. This poem, Psalm of Life, has been composed by H.W. Longfellow, जिसकी full form Henry Wadsworth Longfellow है. Henry Wadsworth Longfellow was an American poet. He was born on 27th February 1807 in Portland. He was one of the first teachers of modern European language at Harvard University. His poetry was extremely popular in his own days, and he was greatly respected in his lifetime. The lifetime he got respect for all Americans. He composed both short and long poems, some of which celebrated the life of Red Indians. His style is simple, and he was used verses in various forms. He died on 24th March 1882. His first collection of the poems was Voice of the Night, published in 1839, and Ballads and Other Poems in 1841. The Psalm of Life was in 1838. Through this inspiring poem, The Psalm of Life, the poet W.H. Longfellow wants us to teach a high moral. He teaches us that life is purposeful to achieve our aim, and we should work with a spirit of courage, wholeheartedly and cautiously. We should not afraid the coming difficulties of our life that thwart our progress. थ्रॉट रोकना, जो हमारी प्रोग्रेस को रोकती हैं. We should face all circumstances of life as heroes to make our lives useful and successful. We should work hard and wait for results. Now we will come to the poem The Psalm of Life. Now I am going to explain in Hindi this poem. Life is real, life is earnest, and the grave is not its goal. Thus thou art, to dust returnest, was not spoken of the soul. The poet says, poet कहता है, the life is real, जीवन वास्तविक है. Life is earnest, जीवन गंभीर है. Earnest means गंभीर. तो जीवन वास्तविकता से परिपूर्ण है, जीवन गंभीर है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे हमें गंभीरता से लेना चाहिए. एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और ग्रेव मीन्स कब्र, यहाँ पर मृत्यु से सेंस है. द ग्रेव एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, मृत्यु इसका अंतिम लक्ष्य नहीं है. यानी हमने जीवन प्राप्त किया और हमें मर जाना है, यही हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है. Thus thou art, to dust returnest, was not spoken of the soul. जैसे हमारे पुराणों में भी कहा गया है कि thus thou art, dust means धूल है, यहाँ होता है, बट यहाँ पर मिट्टी से सेंस है कि thus thou art, thou means तू मिट्टी से बना है. and dust returnest, return means वापस हो जाना, और मिट्टी में ही मिल जाना है. जैसे कहा गया है कि मिट्टी से तुम बने हो और मिट्टी में ही मिल जाना है. जैसे हमारा कहा गया है कि हमारा जो शरीर है मिट्टी से बना हुआ है, तो ये मिट्टी में ही अंत में मिल जाएगा. was not spoken of the soul, ये आत्मा के लिए नहीं कहा गया है,
ये हमारे शरीर के लिए कहा गया है, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो नश्वर है, एक दिन नष्ट हो जाना है, और आत्मा तो अजर और अमर है, जैसा कि हमारी जो भगवत गीता है उसमें भी कहा गया है आत्मा अजर और अमर है। नेक्स्ट स्टैंजा, नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो is our destined end or way, but to act that is tomorrow find us farther than today. Not enjoyment, आनंद मनाना, ना तो अत्यधिक आनंद मनाना, and not sorrow, और ना ही अत्यधिक शोक मनाना, दुख मनाना। is our destined end or way, ये हमारे भाग्य के खेल नहीं है, ये हमारे भाग्य में पूर्व निर्धारित नहीं है। but to act दैट इज टुमारो, बल्कि हमें क्या करना है, ऐसे एक्ट मीन्स कार्य, ऐसे कार्य करना है दैट इज टुमारो, ताकि हमारा ईच प्रत्येक आने वाला कल फाइंड अस फार्दर देन टुडे, और अत्यधिक बेहतर बन जाए, बहुत और अत्यधिक अच्छा बन जाए। अर्थात हमें ऐसे काम करना चाहिए कि जिससे आज जो हमने प्रगति की है हमें कल उससे और अधिक उन्नति करनी है और अधिक प्रगति करनी है। जो हमने आज प्राप्त किया है कल हमें उससे और अधिक बेहतर प्राप्त करना है, हमें अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए। नेक्स्ट, इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द बिवॉक ऑफ लाइफ, बी नॉट लाइक डम ड्राइवन कैटल, बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ। इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, फील्ड मीन्स मैदान, ब्रॉड मीन्स चौड़ा, बैटल मीन्स युद्ध। इन द वर्ड्स, पोएट ने यहाँ पर संसार को एक विस्तृत युद्ध क्षेत्र माना है और उसने कहा है इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, कि इस संसार रूपी विस्तृत युद्ध क्षेत्र में इन द विवॉक ऑफ लाइफ, विवॉक मीन्स अस्थायी पड़ाव, जीवन का जो अस्थायी पड़ाव है, मीन्स कि आज हमारा जीवन है कल हमारा जीवन नष्ट भी होने वाला है, तो उस ऐसे अस्थायी जीवन में बी नॉट लाइक डम ड्राइवन कैटल, हमें डम मीन्स गूंगे और ड्राइवन मीन्स हाँके गए, कैटल मीन्स पशु, हाँके गए पशु के द्वारा। जैसे पशु को हाँक दिया, डंडे के द्वारा हाँक दिया जाता है, जिधर को हाँक दो वो उधर की तरफ ही चला जाता है, उसको शक्ति के द्वारा हाँका जाता है। इसी प्रकार से हमें उनकी तरह नहीं बनना है, हमें कोई शक्ति से हाँक दे हम किधर भी चले जाएं, है ना, तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें गूंगे कैटल की तरह से, जानवरों की तरह से नहीं बनना है। बी ए हीरो, बल्कि हमें क्या बनना है, एक हीरो बनना है, एक नायक बनना है। इन द स्ट्राइव, स्ट्राइव में संघर्ष में, जो हमारे जीवन में संघर्ष है वो उस संघर्ष में हमें हीरो बनना है और उस संघर्ष को बहादुरता के साथ हमें सामना करना है, बहादुरता के साथ हमें उसको फेस करना है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि इस संसार में हमें बहुत सारी परेशानियां व्यक्ति को फेस करनी पड़ती हैं, हमें उन परेशानियों से दूर नहीं भागना है, बल्कि हमें उन परेशानियों का डटकर मुकाबला करना है, डटकर सामना करना है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ स्टैंजा आता है, लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विद ए हार्ट फॉर एनी फेथ, still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait। अब पोएट कहता है let us then, फिर क्या करो, आओ अब हम, be up doing, खड़े हो जाएं कार्य करने के लिए, हम पूरी दृढ़ इच्छा से पूरे मन से खड़े हो जाएं with a heart for any fate, fate means भाग्य, लेकिन यहाँ पर परिणाम से सेंस आ रहा है कि with a heart of any fate, कि हमारे भाग्य में उसका परिणाम अच्छा है या बुरा है उसकी परवाह ना करते हुए हमें पूरे मन से खड़े हो जाना है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने कार्य को पूरा करने के लिए। क्योंकि स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, हमें बहुत कुछ प्राप्त करना है, हमें कुछ प्राप्त करने के लिए क्या करना है, स्टिल परसुइंग, किसी काम के पीछे पड़ जाना है, किसी काम को लगातार करने के लिए हमें अपने आदत डालनी पड़ेगी। तो क्या है, स्टिल अचीविंग, अभी हमें बहुत कुछ प्राप्त करना है, बहुत कुछ हमें करना है, तो हम उस काम के पीछे हमें लग करके पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ लग जाना है। इसके लिए हमें लर्न टू लेबर, हमें क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी सीखनी पड़ेगी, लेबर मीन्स मेहनत,
एंड टू वेट, और इंतजार करना पड़ेगा। किसका इंतजार? परिणाम का, कि जो कार्य हमने किया है उस कार्य का क्या परिणाम निकलता है, उस परिणाम का हमें इंतजार करना है। चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो, लेकिन हमें, चाहे उसका परिणाम अच्छा हो या बुरा हो, हमें दोनों को ही स्वीकार करना है। हमें अपने जीवन से कभी भी निराश नहीं होना है। थैंक यू। ये पोएम थी, ये आपको अच्छे से हिंदी में समझ में आ गई होगी। यहाँ पर मैंने ग्लोसरी भी लिखी है। दैट्स ऑल। थैंक यू।